कोरोना टाइम। एक अच्छी बात है कि अभी ये बहुत जगह पूरे इंडिया में कोरोना का प्रभाव बहुत कम हो गया है। ऑलमोस्ट इट्स बहुत जगह लॉकडाउन खुल भी गया है। सो वी होप you and your family are safe and sound. So I welcome you all for this second dialogue of MSME crisis dialogue series. And हमारा ये जो objective था to initiate this MSME crisis dialogue, the objective is again in last 1.5 years post pandemic, India is going through a hard time. Even last week, our economy, our GDP has shrunk to minus 7.3. So during when our GDP is shrinking, the most affected segment is a MSME, and MSME is a backbone of any economy. If we say India, 98.5% company falls under MSME. Now, when economy is going through the crisis, so MSME is 70 to 80% MSMEs companies are got affected. और इसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ इंडिया में, एंड ऑफ लेट द सिचुएशन इज वेरी हॉरिबल. तो व्हाट वी थॉट कि मूविंग फॉरवर्ड अगर एमएसएमई को हम लोग स्ट्रांग करेंगे, and we have to put all our efforts and energy together. Even we are talking to state government, central government, all this MSME department as to how we can work with them, and we come out with a various policies and scheme so that the benefits and those benefits can be extended to MSME. But I think before that, I forgot to introduce myself. My name is Subhash Tanwar. I am founder and CEO of Success Consultancy. I'll just brief about Success Consultancy as well. We started this Success Consultancy. Again, objective is to support MSME. We support, we create, we provide end-to-end support and services to MSME. Here, I'll just define what was the objective and what is our vision and mission to start this success. Here, success, we promote nation building through team, collective, and collaborative success, core and individual success. When we say collaboration, because looking at the current scenario, collaboration, coming together, working together is a way forward. Because in this hard time, definitely working alone, you'll have a lot of challenges. And so, in success, it is our endeavor to support MSME to make you successful. और फिर इसमें हमने हमारा मिशन बहुत सिंप्लीफाई किया है. हमारा मिशन क्या है? Our mission for MSME is to make your business simpler, enjoyable, and profitable. And how you can do it? By outsourcing. We are asking MSME, you outsource your non-core business activity to Success Consultancy, and we support right people and right cause. And we have a great team of consultant on board. Cumulative, we have 200 plus man years. In this endeavor, this is our second lecture or second dialogue for MSME. And just a second, somebody is calling me. So here, mainly when we say कि MSMEs are going through crisis, the most important, इनका business नहीं बढ़ रहा है, इनका sales नहीं हो रहा है. So eventually, what we thought, what is most important aspect for any business is their sales and marketing. And today, we are going to give a different perspective on how MSME can use network marketing, the people of power effectively. And for this, we have invited a very, very special guest, Mr. Yogi Thakkar. I'll just brief about Mr. Yogi Thakkar. Mr. Yogi Thakkar is a co-founder and CEO of TYMK Group. Yogi Thakkar is a very young and dynamic entrepreneur. He's merely 30-year-old, but he started his foundation of business when he was doing engineering. And so this company was actually founded in 2000. TYMK Group was established by Mr. Yogi Thakkar and his partner, Mr. Siddharth Joshi, when they were doing the engineering. But to actually to say special thing about Mr. Yogi, कि जब वो लोग
सॉरी, एक फोन आ रहा है बीच बीच में। तो जब हम कॉलेज में दिन रात पढ़ाई करते थे तो योगी भाई ने कॉलेज से ही नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझ के, सो व्हेन अदर पीपल आर एक्चुअली घर से पैसा लेके उनका कॉलेज का फी वगैरह भरते थे, बट योगी भाई when he was in engineering he got connected to network marketing and he was driving car, means engineering में हम जॉब के पीछे पड़ते थे, मगर उनके थर्ड और फोर्थ ईयर में ही योगी भाई was driving his own car and he conceptualized this idea of TYMK when they were in engineering. But to brief about TYMK group, it's a very big group today. They have more than 12,000 customers across India and abroad. They are into manufacturing. We, myself and my partner Unmesh, we had been to his office in Baroda. We went to his factory. He has around, at this age of just the 30, he is having a overall team of 120 plus people. So I think on this subject of here, this network marketing is a specialized subject. और आज का जो क्राइसिस है इसमें हर एक कंपनी को मार्केटिंग का एक नया नया जरिया देखना पड़ेगा. मीन्स we all have to evolve as for doing business. So without wasting much time, I would request you all to give a rousing welcome to our young and dynamic entrepreneur, Mr. Yogi Thakkar. So, and I thank you, Yogi Bhai. तो योगी भाई, ओवर टू यू. और इसका सेमिनार रहेगा कि एक 20-25 मिनट योगी भाई विल एक्चुअली ब्रीफ अबाउट दिस कंसेप्ट एंड आफ्टर दैट विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मिस्टर योगी. Namaskar everyone. Good morning all of you. First of all, I congratulate all of you to come here. आप सब लोग यहाँ पर आए. आज संडे मॉर्निंग है. आप लोग मूवी देख सकते थे या घूमने जा सकते थे, बट आप सब लोग यहाँ पर आए इस संडे मॉर्निंग को कुछ लर्न करने के लिए, कुछ नया जानने के लिए कि लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सके या लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए या लोगों के साथ हम आगे बढ़ सकते. इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए संडे मॉर्निंग को. और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज का जो इस समय में पैंडेमिक के अंदर बिजनेस चल नहीं रहे, बहुत ही तकलीफ है मार्केट के अंदर. रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, सिनेमा हॉल, सब कुछ बंद हो गया है. तो उसके बीच में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर टॉपिक रखा है. उमेश सर और सुभाष सर जी जो होस्ट है इस मीटिंग के और सक्सेस कंसल्टेंसी के फाउंडर है. First of all, I would like to thank you, Subhash sir, Unmesh sir, and all the stakeholders of Success Consultancy who invited me to this event. तो ये जो आज का इवेंट है, सुभाष सर एक ऐसे इंसान है कि जिनको नेशन बिल्डिंग करना का अच्छा ड्रीम है, उनको एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल लेवल पे भी उन्होंने काम किया है. तो उनका ऐसा मानना था कि बहुत सारे बिजनेसमैन लोग तकलीफ में है अभी और उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है. तो ऐसा कोई हम रास्ता लोगों को दे जिससे लोगों को बिजनेस करने का आसानी हो, लोगों का सेल्स बढ़े, लोगों का प्रॉफिट बढ़े, लोगों का जो जॉब है वो चला गया है तो लोगों को एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मिले. तो उसके लिए हमारा डिटेल में डिस्कशन हुआ सुभाष सर, उमेश सर के साथ. और हम लोगों ने प्लान किया कि ये इवेंट को हम लोग करते हैं ताकि लोगों को एक अच्छा रास्ता मिल पाए. तो आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस मीन्स सेल्स एंड सेल्स मीन बिजनेस. मतलब धंधे का मतलब सेल्स है और सेल्स का मतलब धंधा है. अब हम इसके ऊपर बात करें, कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी बिजनेस होता है, तो पूरा सेल्स के ऊपर होता है. जैसे आप देखते हैं बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनीज है, तो हर 3 महीने में उनके बैलेंस शीट के रिजल्ट्स आते हैं कि ये इनका टर्नओवर जंप होके 123% ग्रो हुआ, इतना परसेंट ग्रो हुआ. तो इस तरीके से उनका आउटपुट आता है. फिर लास्ट में आता है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कितना हुआ ये क्वार्टर में, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ. तो बात टर्नओवर और प्रॉफिट की है. टर्नओवर और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक ही बात है कि आपको सेल्स बढ़ाना होगा. सेल्स बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है. जनरली हम लोग देखेंगे तो
तीन चार मेथड है सेल्स करने का, कोई भी बिजनेस हो। पहला मेथड है कि हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग करते हैं, जिसके अंदर जो भी शॉप होती है, शोरूम्स होता है, या जो भी बिजनेस होते हैं, वो लोग स्टाफ रखते हैं और उसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग होता है शोरूम के ऊपर से या शॉप के ऊपर से या फिर ई कॉमर्स के थ्रू। दूसरी एक बात, आजकल बहुत एक अच्छा टॉपिक चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग मतलब गूगल एड्स के ऊपर काम हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग के आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, फेसबुक पे हो सकता है, लिंक्डइन पे हो सकता है, क्योंकि वहां पर लोग अवेलेबल है। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप रोड के ऊपर एक बैनर लगा दो और आपका बिजनेस हो जाएगा। आज यहाँ पर आप मोबाइल के ऊपर आप जाके देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे एड्स आते हैं, और वो शॉप शायद मुंबई में होगा, बट फिर भी बड़ौदा का या लखनऊ का या दिल्ली का कस्टमर उस चीज को देख सकता है कि नहीं भाई, ये चीज मुझे चाहिए तो यहाँ से मिल सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अच्छा ही है, बट डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ काफी ज्यादा रहने वाला है अभी। इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास कि नेटवर्क मार्केटिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में 93 में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। कुछ कंपनीज ने इंडिया के अंदर इस बिजनेस को लेकर आए थे, और बहुत ही अच्छा अभी चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबको पता है, डिजिटल मार्केटिंग मैंने थोड़े डिटेल बताया अभी। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को अप्लाई करना चाहिए, अगर इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको, कोई लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई नहीं जानता है तो नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, और क्या बोल सकते, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, चेन मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो 100 से 150 साल पहले, आई थिंक 1885 में एक यूएस की कंपनी थी एवॉन, उसने शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। और वो इंडिया में आते आते 93 95 में कुछ कंपनीज आई और वो लोग लेकर आए। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, आपका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विसेज हो सकता है। तो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के थ्रू, ना ही शॉप के थ्रू, ना ही ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, लोगों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों का नेटवर्क के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना एक प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग थ्रू नेटवर्क। और उनमें सर मुझे एक पीपीटी शेयर करना था, तो उसके लिए आप सिद्धार्थ को एक बार होस्ट बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। या मैं करता हूँ उनको। सिद्धार्थ, आर यू अवेलेबल? यस सर, आई एम अवेलेबल हियर। या एक पीपीटी शेयर करना है। ओके। या सिद्धार्थ, यू आर द होस्ट। यस सर। सब लोग देख पा रहे हो? यस सर। यस यस, इट इज विजिबल। ग्रेट ग्रेट। सिद्धार्थ, आप आगे एक्सप्लेन करो ना। ओके, ये पीपीटी सो के थ्रू। हेलो, नमस्कार दोस्तों। कुछ अब ग्लिम्स लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि व्हाट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग और ये कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर बाकी सभी कंट्रीज में भी। सो कुछ हमने यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स डिराइव किए हैं मार्केट में से, ठीक है। सो उसके अंदर जस्ट वॉक थ्रू करते हैं अपने। सो पीपल क्यों एक्स्ट्रा अर्निंग प्रीफर करते हैं, उसके कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे लोगों को 9 to 5 जॉब रूटीन के अलावा भी दूसरा टाइम फ्रीडम चाहिए, जहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने सेल्फ के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम्स चाहिए, ठीक है, ताकि उनको फ्रीडम मिल पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की वजह से लोगों को कोई स्टॉक नहीं करना पड़ता, कोई शिप इन्वेंट्री नहीं करनी पड़ती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है जहां से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
रिस्क ऑफ मनी, जैसे स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी के में इन्वेस्ट करने से, ठीक है, जो एक रिस्क रहता है मनी का, वो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है या फिर नेग्लिजिबल हो जाता है। एक इंटरनेट के थ्रू अर्निंग करने का लोगों को मौका मिलता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे उनको अप्रिसिएट करते हैं ज्यादा अर्निंग के लिए, ज्यादा बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए। और यहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जिनका एक जैसा माइंडसेट होता है कि उनको लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना है या उनकी फैमिली को लाइफ में कुछ अच्छा मुकाम पे पहुंचाना है। सो हम इसमें आगे जाते हैं अभी। सो बिजनेस, जैसे आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इन द सिमिलर वे इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई कैन से दैट द नेटवर्क इज द वंडरफुल थिंग कि जहां से एक अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं आप। और ये नेटवर्क ऐसा है कि आप उसको कोई भी जगह पे जाके, कोई कहीं भी जाके उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं या फिर रिटेल चेन की बात करते हैं, तो उसमें एक वर्टिकल लाइन में ही आप वहां पे अर्निंग गेन कर सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपने नेटवर्क को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसको स्प्रेड कर सकते हो और कोई बाउंड्रीज नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसको आप लेके जा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हो या फिर कंपनी को स्टार्ट करते हो तो आप अनलिमिटेड इनकम्स लोगों को दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ इनकम। आप अलग अलग टारगेट्स एंड गोल्स लोगों को दे सकते हो। एंड जैसे हमारा बात हुआ, स्ट्रेचेबल नेटवर्क है, पूरा वर्ल्ड वाइड आप लेके जा सकते हो, चाहे पेंडेमिक हो या ना हो। ठीक है, इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है कि ये पेंडेमिक के टाइम में जहां पे बड़ी बड़ी कंपनी कलेप्स हो जाती है, ठीक है, जहां पे सिनेमा थिएटर सब कुछ बंद हो जा रहा है, और वही टाइम पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आगे जाके ग्रो कर रही है। हाँ सिद्धार्थ, ये नेक्स्ट स्लाइड। यस। हम अगर बात करें, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा। उस इमेज को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी कंपनी या सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सोर्स जो है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अभी के टाइम पर। एक है ट्रेडिशनल मार्केट, वहां पर आप देखेंगे सबको स्क्रीन पे स्लाइड दिख रहा होगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल सेल्स, एडवर्टाइजिंग, टैक्स एट एंट्री लेवल, एवरी लेवल। तो यहाँ पर आप सब कुछ देखेंगे तो 80% कॉस्ट जो है वो मिडल मैन के पास जाता है। कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कोई भी सर्विसेज या जो गुड्स है वो उसको पहुंचते पहुंचते 80% या 60% या 50% जो वेरिएबल रहता है हर एक इंडस्ट्री के ऊपर, उतना पैसा लोगों के बीच में बिजनेस हाउसेस या ट्रेडिंग हाउसेस में डिवाइड हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पर ये जो पैसा है वो सीधा कंपनी से लेकर मैन्युफैक्चरर या सर्विस का जो ओरिजिन हो रहा है वहां से लेकर कस्टमर तक जाता है, और उसके बीच में डायरेक्ट सेलर होता है। मतलब जिसको जो नेटवर्क लोग होते हैं वो लोग सीधा कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने के लिए ब्रिज बनते हैं, कस्टमर तक गुड्स पहुंचाते हैं या मतलब जो काम है उनका कस्टमर को कंपनी तक या बिजनेस हाउस तक लेके जाना, वो काम नेटवर्क मार्केटर करता है। तो उसी चीज का उनको पैसा मिलता है। और यहाँ पर हम जो स्लाइड में देखेंगे तो ये जो पैसा यहाँ पर बट रहा था ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस मॉडल में, वो पैसा हम लोग नेटवर्क मार्केटर को एक अर्निंग के रूप में दे सकते हैं। सिद्धार्थ, दूसरा एक स्लाइड है ना अपने पास? जस्ट अ मिनट। अभी के टाइम पर अगर हम इंडिया के अंदर देखें, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो आ रहा है वेलनेस प्रोडक्ट से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से 55%, 27% होम केयर प्रोडक्ट से 3%, 6% अदर सर्विसेज एंड गुड्स हो गया, फूड स्टफ एंड बेवरेजेस में 3% है, और हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल आइटम्स के अंदर 6% है। तो इस तरीके से अगर हम आज इंडिया के अंदर, तो 95 के आसपास इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आया था, और हर साल 10 से 15% ग्रोथ बढ़ रहा है इस बिजनेस का। और इंडिया के अंदर अभी का जो इसका टर्नओवर है 15,000 करोड़ के आसपास इस इंडस्ट्री से टर्नओवर हो रहा है। नेटवर्क मार्केटर्स लोग
ऑफिशियल है, जो इतना थोड़े कंपनीज का डेटा है अभी अपने पास, वो 15,000 करोड़ के आसपास बिजनेस हो पा रहा है इस वे ऑफ बिजनेस मॉडल के थ्रू। और वर्ल्ड में इंडिया बहुत पीछे अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यूएस जो है वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, हम बोल सकते हैं लाखों करोड़ों में इस इंडस्ट्री के थ्रू बिजनेस हो रहा है। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंच रही है, ओरिजिन जहां से हो रहा है या सर्विसेज जहां से ओरिजिन हो रहा है, वहां से कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो बीच में ट्रेडिंग हो रहा है, जो बीच में बिजनेस हो रहा है, वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस वर्ल्ड वाइड होने लगा है। और इसके ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस बनाई हुई है 2016 में। ऑफिशियली सभी स्टेट्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। आप गूगल पे जाके देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016। तो पहले ऐसा होता था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक का दो बनाओ, दो का चार बनाओ, और मतलब एक दूसरे को बनाने का बिजनेस है, ऐसा होता था पहले। क्योंकि हर बिजनेस में कोई ना कोई स्कैमस्टर्स होते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में देखेंगे तो स्कैम 1992 हर्षद मेहता का मूवी आया था। ऐसे हर फील्ड में आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, हॉस्पिटल्स में भी स्कैम होता है, हर जगह होता है। तो इस कारण से कुछ इस इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ था। बट अभी गाइडलाइंस आने के बाद, रूल्स बनने के बाद, इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ही ऊपर जा रहा है। और ये रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। बेटा अभी रिसेशन जैसा माहौल है मार्केट के अंदर, बट अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो इम्यूनिटी बूस्टर के ज्यादा चलते हैं आजकल, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक और रीपर्चेस टाइप डेली नीड्स के प्रोडक्ट जो है, जो कंपनी बेच रही है, उनमें कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता। इसलिए काफी अच्छा माहौल इंडिया के अंदर है। लोगों के जॉब जा चुके हैं, फिर भी लोग मतलब एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपना अभी घर चला पा रहे हैं, सपने पूरे कर पा रहे हैं। आज मैं अगर इंडिया की बात करूं तो कम से कम 7 to 8 करोड़ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। और आई थिंक 6 to 7 मिलियन लोग हैं जो एक्टिवली हर रोज सुबह, जैसे आप ऑफिस जाते हो और शाम को घर पे आते हो, उस तरीके से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले 6 to 7 मिलियन लोग, यानी 60-70 लाख लोग आज इंडिया के अंदर इस बिजनेस को कर रहे हैं एक्टिवली। और 5-7 करोड़ लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर दिया है। आज इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है इंडिया के अंदर। यूएस से बहुत सारी कंपनीज आई हुई है, एमवे, एवॉन, हर्बल लाइफ, फॉरएवर। कोरिया की कुछ कंपनीज इसके लिए यहाँ पर आई हुई है, मतलब एटमी जैसी कंपनीज है। और बहुत सारे कंपनीज है यूरोप से या मिडल ईस्ट से जो इंडिया के अंदर काम करने की यहाँ पर लोग इसलिए काम करने आ रहे हैं इंडिया के अंदर। मेन रीजन ये है कि यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, एक आम आदमी को। इसलिए बाहर की कंपनीज के लिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि वहां की कंपनीज यहाँ पर आके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के थ्रू लोगों को एक इनकम का अपॉर्चुनिटी देकर प्रोडक्ट्स को कंपनी से लेकर एक एंड कस्टमर तक पहुंचाने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इंडियंस है, और हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है नेशन बिल्डिंग का, तो उसके अंदर मेड इन इंडिया का जो विजन और मिशन है, उसके तहत हम लोग यहाँ की जो लोकल कंपनीज है या लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग अपना खुद का बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को अप्लाई करके खुद के सेल्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स है पर्सनल लेवल पे, मैं आपको बताऊंगा, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता था, आज उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया अपनी कंपनी के अंदर। जो ऐसे है कि 20 साल से उनकी कंपनी चल रही है, स्टोर चल रहे हैं, उसके अंदर एमएलएम तो था ही नहीं। वो लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस से मार्केटिंग कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे, रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस कर रहे थे। आज उन्होंने ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया और उनका सेल्स सपोज 4 करोड़ हो रहा था या 6 करोड़ हो रहा था साल का, वो हो गया सीधा 10 करोड़ या 12 करोड़ तक पहुंचने का लिए सिस्टम, इकोसिस्टम उन्होंने रेडी किया। कल मेरा उन्मेष सर से बात हुआ था, उन्मेष सर के भाई के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक इंटरनेट कंपनी है बॉम्बे के अंदर, जिनके 40,000 कस्टमर है पैन इंडिया लेवल पे, और उनको 10 टाइम्स वो कस्टमर बेस को बढ़ाना है।
वो 10 टाइम्स कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जाए पूरे इंडिया लेवल पे, तो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का उसमें उपयोग हो सकता है। तो ये कैसे उसका अप्लाई हो सकता है, एग्जीक्यूशन कैसे करे, वो हर एक इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट मॉडल होता है। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके लिए मतलब बहुत सारी एनालिसिस है हमारे पास। अगर किसी को कुछ डिटेल में जानना है तो ये मीटिंग के बाद हम डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आज इंडिया के अंदर, और हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे आगे कि इसका और बेनिफिट्स क्या है कंपनी को। एक जैसे कंपनी है तो वो कंपनी किस टाइप की होती है, दो टाइप की कंपनीज होते हैं या बिजनेस हाउस होते हैं। एक है जो लोग लो मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि यूटिलिटी सर्विसेज, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, कोर बैंकिंग, बाद में आपका ग्रोसरी, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लोकल फ्रूट्स। यहाँ पर वॉल्यूम पे काम होता है, इजीली अवेलेबल चीजें ये सारी, तो इसके अंदर बहुत मार्जिन नहीं होता है। तो ये चीजें कॉमन है और इजीली अवेलेबल है, तो ये चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अप्लाई नहीं हो सकती। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन सी चीजें अप्लाई हो सकती है, ये क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर जो कोई है, मैं सपोज मैं हूँ, मेरे टीम में सिद्धार्थ है, मेरे टीम में भावेश है, तो ऐसे मैं किसी को ज्वाइन करा रहा हूँ, वो किसी और को ज्वाइन करवाते हैं और वो किसी और को ज्वाइन करवाते हैं। तो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे सपोज ये एक प्रोडक्ट हमने बनाया, तो वो प्रोडक्ट मेरे नीचे 10,000 लोगों का नेटवर्क है और किसी ने एक ने बेचा, तो वो पैसा सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊपर के लेवल्स में कंपनी तक। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसके कंपेंसेशन प्लान मेथड्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए मार्जिन चाहिए होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया, और इंडिया में मैंने खुद पर्सनली देखा है कि किस टाइप की जो कंपनीज है जिसमें मार्जिन है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है। तो मैं अगर बात करूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि उस बिजनेस के अंदर 30, 35, 40, 50, 55, 60% का मार्जिन स्ट्रक्चर है, जो इंश्योरेंस कंपनी आज उसके एडवाइजर्स और क्या बोलते हैं एजेंट्स को देता है। तो ये जो बिजनेस है, मार्जिन जो इसके अंदर है बचता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, वो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कुछ हाई मार्जिन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो गए बैंक के, तो इसके अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है। जैसे हमने अभी बात किया इंटरनेट, तो इंटरनेट का कनेक्शन और इंटरनेट की सर्विसेज के ऊपर भी नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। कुछ स्पेशल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो इम्पोर्टेड है, जैसे मैं बात करूं आज इंडिया के अंदर एवोकाडो का रेट जो है वो 400 रुपीज का एक एवोकाडो मिलता है। तो ऐसे कुछ जो मार्जिन वाला, हाई मार्जिन वाला आइटम्स है, एक्सोटिक ड्राई फ्रूट्स है, या फिर केसर की बात करें, सैफरन जो ईरान से ज्यादातर इंडिया में आता है, कश्मीर में भी होता है बट ज्यादातर ईरान से पिस्ताचियो भी आते हैं, उसके अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। रियल एस्टेट में काफी मार्जिन होता है। आज आप जहां पर भी जाओ, बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, रेडियो एफएम ऑन करो, न्यूज़पेपर ओपन करो, आपको दिखेगा कि रियल एस्टेट की एड्स भर भर के उन्होंने लगाए हुए न्यूज़पेपर के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, गुजरात समाचार ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर। तो इतना सारा पैसा ऐड का कहां से लाते? एक एक ऐड का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीस का ऐड होता है। तो ये पैसा उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्पेयर है। और यहाँ पर पेपर के अंदर ऐड देने से या बैनर लगाने से गारंटेड रिजल्ट्स नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बिजनेस मिल जाएगा पेपर में ऐड देने से। वो पैसा आपने 5, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ लगाया मार्केटिंग के अंदर, उसका आउटपुट तय नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल के अंदर अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने रियल एस्टेट का कोई फ्लैट या बंगलो या कोई भी प्रोजेक्ट सेल करने के लिए नेटवर्क मार्केटर को दिया, तो आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता है। आपका एक्सपेंस, आपको नेटवर्क मार्केटर को पेमेंट तभी देना होता है जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसा नेटवर्क मार्केटर को देना है। जैसे आपने डिसाइड किया होगा कि एक 4 BHK फ्लैट है 50 लाख रुपीस का,
उसके ऊपर 5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो 5 लाख तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब आपका फ्लैट या बंगलो बिक जाएगा। रियल एस्टेट की मैं अगर बात करूं, या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गई, या फिर कोई भी गारमेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे मेंबरशिप्स होते हैं, जैसे आज किचन अप्लायंस है। मेंबरशिप में जैसे हम बात करें तो अमेजोन प्राइम टाइम्स की मेंबरशिप, नेटफ्लिक्स सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप होती है, गूगल ड्राइव का भी पेड वर्जन आता है, जूम मीटिंग जो हम कर रहे हैं उस पर भी पेड वर्जन आता है। तो ये सबके अंदर एमएलएम हो सकता है सेल्स बढ़ाने के लिए। तो ये जो हाई मार्जिन वाली चीजें है, जो प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। और आपको पैसा नेटवर्क मार्केटर को तभी देना है जब आउटपुट आता है। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लोगों को जॉब पे रखने का जरूरत नहीं है, आपको उसका एक्सपेंस करने का जरूरत नहीं है, आपको बैनर लगाना जरूरत नहीं है, आपको सेलिब्रिटी हायर करना जरूरत नहीं है, आपको न्यूज़पेपर ऐड देना जरूरत नहीं है, टीवी ऐड देना जरूरत नहीं है, रेडियो ऐड देना जरूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप देना जरूरत नहीं है। ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में आउटपुट देने के बाद आप नेटवर्क मार्केटर को पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, इन दिस इंडस्ट्री यू पे टू नेटवर्क मार्केटर्स ओनली व्हेन देयर इज आउटपुट, यू डोंट पे फॉर एफर्ट्स। मतलब एक बिजनेस हाउस अगर है, वो नेटवर्क मार्केटर को तभी पे करता है जब आउटपुट आता है, जो एफर्ट्स किया उसका पेमेंट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा बिजनेस हाउसेस के लिए है कि वो पेमेंट, जो उनका मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपेंस है, वो पूरा एक्सपेंस आउटपुट के ऊपर देना है। अभी हम बात करेंगे और कौन सी इंडस्ट्री है हाई मार्जिन वाली जिसके ऊपर एमएलएम हो सकता है। तो हम बात कर सकते हैं ऑटोमोबाइल का। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। ऑटोमोबाइल सर्विसेज पे हो सकता है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेकअप आइटम्स, गारमेंट अपैरल्स, इसके ऊपर आज सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन है। वो मार्जिन कितना होता है, आज से 100 रुपए की अगर ये प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी होता है, यानी 18 रुपया जीएसटी हो गया। और हम बात करें प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो 20 to 25 रुपीज इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई। बाकी जो मार्जिन बचता है उस मार्जिन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मतलब आई थिंक 50% पैसा बचता है कंपनी के पास एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वैसे कौन से बिजनेस मॉडल है, तो हम बात करेंगे कि गारमेंट अपैरल्स में हो सकता है, रेस्टोरेंट्स में हो सकता है, स्वीट शॉप, बेकरीज, होटल इंडस्ट्री, क्लब मेंबरशिप, रिसोर्ट मेंबरशिप, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मेंबरशिप। अमेजोन प्राइम का हमने बात किया, उस टाइप की काफी सारी ऑनलाइन मेंबरशिप हो सकती है। फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, गूगल ड्राइव, जैसे आज मैं खुद हर महीने 200 रुपया पे करके मेरा ईमेल यूज कर रहा हूँ, या गूगल ड्राइव की स्पेस बाई की हुई, ऐसे कुछ भी सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स है जो चार्जेबल है, तो ये भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हैं। किचन अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, कुकवेयर, आज एक इंडिया के अंदर बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की कंपनी काम कर रही है, टपरवेयर। ये कंपनी कुकवेयर, यूटेंसिल्स और ये सब कुछ आइटम्स है किचन के, उसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। फर्नीचर, सलोन एंड स्पा मेंबरशिप, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, ऑप्टिकल्स, हॉलीडे पैकेजेस, एजुकेशन, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो गया तो उसके भी मेंबरशिप में नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है। स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम, पेंटिंग्स, क्रिएटिव यूनिक रेयर कलेक्शंस, डोनेशंस, मार्केटिंग सर्विसेज फॉर अदर ब्रांड्स, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, ये सभी के ऊपर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। ये इसके ऊपर ज्यादा इसलिए हो सकता है कि डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर काम करने वाली इंडस्ट्रीज है। जो जो भी बिजनेस टू बिजनेसेस, B2B में काम कर रहे हैं, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल आई थिंक अभी के लेवल पर पॉसिबल नहीं है। बट जहां पर एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, जैसे मैंने ये सब इंडस्ट्रीज बताई, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छे लेवल पर अप्लाई हो सकता है। और एक बात है कि नेटवर्क मार्केटर जो लोग होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, उनका क्या रोल होता है इस बिजनेस के अंदर। तो उनका रोल होता है कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने के लिए कंपनी के पास या ब्रांड के पास लेकर आए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। फॉर एक एग्जांपल, एक मीशो नाम का भी एक ऐप चल रहा है इंडिया के अंदर, उनको भी बहुत अच्छा फंडिंग में मिला है, कुछ $1 बिलियन में। और वो लोगों का
पास अभी 1 करोड़ नेटवर्कर्स है जो एक दूसरे को नहीं जानते, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो लोग उस साइट के ऊपर, मतलब अमेजोन जैसी वेबसाइट है, और एक इंसान एक दूसरे इंसान को कैटलॉग भेजता है ऑनलाइन की ये लिंक पे से बाई करो और आपको प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छी मिलेगी। अगर कोई कस्टमर बाई करता है अमेजोन जैसी वेबसाइट पर या मीशो के ऐप के ऊपर या फ्लिपकार्ट जैसी साइट के ऊपर या आपकी खुद की साइट के ऊपर, तो जिसने उस साइट पे कस्टमर को लाए और रेफर किया उसको वो पैसा मिलता है। उसको हम मतलब जो पैसा बांटेंगे वो नेटवर्कर को बांटेंगे। तो वो जो नेटवर्कर है उसका रोल ये होता है कस्टमर को वेबसाइट तक लेके आना, ई कॉमर्स वेबसाइट तक लेके आना, या आपके स्टोर या ब्रांड जो भी सर्विसेज का या प्रोडक्ट देने का आपका जगह है वहां तक उनको पहुंचाने का काम है, और वहां पर जो सेल्स हो रहा है तो उसका पैसा उस नेटवर्कर को मिलता है। तो जो नेटवर्कर है वो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको, सिद्धार्थ। यस सर। कुछ पीपीटी में कुछ और स्लाइड्स है तो आगे बताओ ना। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ बिजनेस मॉडल्स होते हैं और जिसके जरिए लोग अपना बिजनेस स्ट्रक्चर और नेटवर्क चलाते हैं। यहाँ पे कुछ अपने एक एग्जांपल लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट आता है जनरेशन मॉडल, देन आफ्टर आता है यूनिलेवल मॉडल, गैप डिफरेंस मॉडल, बाइनरी मॉडल, और ऐसे बहुत सारे दूसरे बिजनेस मॉडल्स है जिसके जरिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। मतलब आप मासिस को कवर कर सकते हो यही बिजनेस मॉडल के जरिए। जैसे हम जनरेशन मॉडल का बात करते हैं तो लोग यहाँ पे, जैसे हमारा स्टार्टिंग में बात हुआ था कि ये नेटवर्क को आप जैसे चाहो वैसे स्ट्रेच कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो जनरेशन मॉडल वैसे ही काम करता है। आप उसको चाहो वैसे जितना चाहो हॉरिजॉन्टली इसको फैला सकते हो अपने नेटवर्क को, और वहां से आप अर्निंग ले सकते हो। और आप इतना जितना चाहे इतना अनलिमिटेड डेप्थ में जाके भी आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो और वहां से बिजनेस ले सकते हो। बाद में आता है यूनिलेवल मॉडल। सो यूनिलेवल मॉडल ये एक ऐसा एक एग्जांपल है जो आप रिटेल में भी देखते हो कि इस प्रकार का मॉडल चल रहा होता है। जैसे आप कंपनी से, हमने पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी हाँ, पिछले की साइड में देखा था कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में हम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को जब हम एडवर्टाइजिंग करने का ऑप्शन देते हैं आपके मार्केट को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एज अ सेम थिंग यहाँ पे यूनिलेवल मॉडल काम करता है। वहां पे पोजीशंस बनती है। मान लो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, उसके नीचे उनकी टीम आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर उनके सुपरवाइजर आ गए। इस प्रकार से यूनिलेवल मॉडल काम करता है यहाँ पे। एंड उसके बाद एक आता है गैप डिफरेंस मॉडल, जो आज इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ये गैप डिफरेंस मॉडल पे काम करती है। जैसे वेस्टीज का बात कर लो, आप मोदी केयर का बात कर लो। तो गैप डिफरेंस में ऐसा रहता है कि आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो एक साथ, और इनिशियल लेवल से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एक ऐसा मॉडल है। बाद में एक बहुत वेल पॉपुलर मॉडल है जो पिछले 30 ईयर्स से इंडिया और इंडिया के बाहर पूरे दुनिया में चल रहा है, जो है बाइनरी मॉडल। इसके अपने हम डिटेल में बात करेंगे जब पर्सनल 1-to-1 डिस्कशन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आता है मैट्रिक्स मॉडल आता है। तो ये मैथमेटिकल जैसे मैट्रिक्स काम करता है वैसे इस प्रकार से मैट्रिक्स मॉडल काम करता है। यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली इतना नेटवर्क को स्ट्रेच नहीं कर पाते हो, 3 to 4 लेवल 5 तक लेके जा सकते हो, और बाद में आपका डेप्थ बढ़ता रहता है। और मेन चीज होता है कि ये जो आपका ये मार्केटिंग मॉडल्स है सभी, उसको आपके एग्जिस्टिंग सेलिंग मॉडल के साथ कैसे अटैच करें, ये एक बहुत ही जरूरी चीज होता है। अगर आने वाले टाइम पे आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हो और वहां पे आप अपनी खुद की प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे सर ने बताया कि एक इंटरनेट कंपनी जिनको इंटरनेट का बिजनेस ग्रो करना है, या फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिनको अपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या फिर एक अमेजोन नेटफ्लिक्स जैसी आप कंपनी बनाते हो जहां पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, छोटे लेवल पे तो छोटे लेवल पे सही, या फिर आपका एक खुद का किराना स्टोर है, और या फिर आपका रियल एस्टेट है, उसको ये बिजनेस मॉडल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, इसके हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं। पहले तो आपके जो रिटेल आउटलेट्स है, स्टोर्स है, या फिर आपकी ई कॉमर्स एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, चाहे मोबाइल ऐप के जरिए जाना चाहते हो या फिर वेबसाइट के जरिए जाना चाहते हो, और वो बिजनेस मॉडल को आपके जो आपके सेलिंग मॉडल है जहां से आप सेल करते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कैसे जुड़ा जाए,
यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या फिर ये दोनों मॉडल को कनेक्शन कैसे किया जाए। आपका बहुत बड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, और उसको कैसे इसके साथ अटैच किया जाए। तो हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है यार, और हम क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए भी, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग को आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। सर अभी इसके आगे सभी प्लान्स के बारे में डिस्कशन है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए सर। और कोई स्लाइड दिखाना बाकी हो तो सिद्धार्थ दिखा दो ना स्क्रीन के ऊपर। ओके, बस ये लास्ट है सर। ये इस टाइप के सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का मॉडल है वो बाइनरी, सिंगल लेग, स्पिल इनकम, डेली बाइनरी, डायरेक्ट इनकम जनरेशन, ये सभी टाइप के जो बिजनेस मॉडल्स है कंपेंसेशन प्लान के नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्लान सबसे बेस्ट है, ये प्लान सबसे गंदा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी कंपनी है, सपोज ये एक प्रोडक्ट है, वो अगर उसके 1000 रुपए में बेच रहे, तो 1000 रुपए के अंदर जो फिक्स एक्सपेंस है जीएसटी का या प्रोडक्ट का या कंपनी के मार्जिन का, वो निकलने के बाद 50 से 60% पैसा या 40% पैसा डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कंपनी के पास बचता है। तो वो पैसा कोई भी मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका ये 1000 रुपए का बॉक्स है और 1000 रुपए के बॉक्स के ऊपर 180 रुपीज आपका जीएसटी लगा, 25% प्रोडक्ट कॉस्ट 250 रुपीज वो लगा, और ये सब एक्सपेंस हम मार्जिन के भी निकाल के 500 रुपीज अगर आपके पास बचता है, जो प्रोडक्ट का 50% वैल्यू है एमआरपी का, वो 500 रुपीज आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उससे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लान अच्छा है, ये प्लान बुरा है, ये प्लान में इनकम नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 500 रुपीज होगा, तो 500 रुपीज ही होगा। कोई भी प्रोडक्ट की एक लिमिट होती है पैसा बांटने की, उसी लिमिट में पैसा बढ़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये प्लान, मतलब मार्केट में ऐसा होता है कि ये प्लान में कम पैसा है, ये प्लान में ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर हम दूसरी एक बात करेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटर लोग होते हैं वो इसमें क्यों आना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो उनके लिए फायदा है जिनके लिए एक बहुत अच्छा जॉब पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करें सुंदर पिचाई का, तो सुंदर पिचाई का सैलरी 2500 करोड़ है इंडियन रुपीज में साल का। तो ऐसा सब लोग नहीं पहुंच सकते। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी। जिनको पैसा कमाना है, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल या जॉब से नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग इसको ज्वाइन करते हैं। और इंडिया में 1.3 बिलियन लोग है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो इस टाइप की बिजनेस में, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप इसमें बिजनेस करके पैसा अर्न कर सकते हो, तो वो लोग जरूर करेंगे। क्योंकि उनको जॉब के रूटीन के बाद भी ये कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम, कभी भी चाहो कभी भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, रिस्क ऑफ मनी नहीं है, घर पे बैठ के भी काम हो सकता है ऐप के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। एक अनएजुकेटेड आदमी है, वो अगर उसके सपने पूरे करना चाह रहा है तो नॉर्मल जिंदगी में ऐसे नहीं हो सकता है। वो इस बिजनेस को विदाउट इन्वेस्टमेंट ज्वाइन कर सकता है। और पीपल जो लोगों के ड्रीम्स है वो पूरा करने का एक ये जरिया है। तो इस कारण से आप यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। दूसरी एक बात यहाँ पर है कि नेटवर्क मार्केटर का रोल क्या रहता है कंपनी के अंदर। नेटवर्क मार्केटर का रोल है कंपनी के पास कस्टमर को पहुंचाना, फिर उस कंपनी के पास कस्टमर को पहुंचाने के बाद उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान सिर्फ 9 से 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। अगर आपका शॉप, बिजनेस या ई कॉमर्स वेबसाइट में आप किसी के साथ खुद अगर चला रहे हो, तो आप बिजनेस रिलेशनशिप हजारों लाखों लोगों के साथ नहीं रख सकते। वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम, रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम एक नेटवर्क मार्केटर कंपनी के लिए कर सकता है। और कंपनी जो है वो ये जो सेटअप किया हुआ है बिजनेस मॉडल, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाने की ऐसा कोई अलग से प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइज ओपन करने की जरूरत नहीं। जो आपका एग्जिस्टिंग कंपनी या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर आप कर सकते हो। आपके ऑफिस, शॉप या ई कॉमर्स
जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग इस मॉडल को। इसके लिए आपको डिजिटल या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कस्टमर को अटेंड करने के लिए। दूसरा, आपके पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए मेंबर मैनेजमेंट करने के लिए, और फ्रेंचाइजी चाहिए। अगर आप फिजिकल स्टोर चला रहे हो तो फ्रेंचाइजी ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर चाहिए। वहां से कोई जाके कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो हजारों लाखों लोगों को उसका पैसा मिलता है लेवल्स वाइज। और इसके अलावा आपको एक एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटर चाहिए होगा जो इस पूरे कैंपेन को लीड करेगा। आपकी कंपनी में डिवीजन, अगर आपकी कंपनी में मार्केटिंग का डिवीजन ऑलरेडी अभी भी है तो नेटवर्क मार्केटिंग का नया डिवीजन को एक एक्सपीरियंस इंसान के साथ लीड करवा सकते हो आप। और इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स होनी चाहिए या सर्विसेज होनी चाहिए। ये बिजनेस मॉडल अप्लाई करने के बाद क्या करना है, अगर आपने बिजनेस मॉडल अप्लाई किया उसके बाद आपका रोल है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मॉडल अप्लाई किया हुआ है तो आपको आपकी टीम को बेसिक ट्रेनिंग देना है, सेल्स ट्रेनिंग देना है, बिजनेस ट्रेनिंग देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाए, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए हजारों लाखों के लोगों के साथ, कैसे हजारों लाखों लोगों के नेटवर्क को लीड किया जाए, उसके लिए लीडरशिप ट्रेनिंग करनी होती है। और इन सभी नेटवर्क मार्केटर्स को ऑन टाइम पे आउट, मतलब इंडिया में अभी वीकली, मंथली, बाई वीकली पे आउट चल रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बिका आपके नेटवर्क से हजारों लाखों क्वांटिटी में, या सर्विसेज बिका तो उसका पे आउट आपको ऑन टाइम वीकली या 15 डेज या मंथली ऑन टाइम देना है, तो लोगों का एक विश्वास बना रहेगा। आप उनको एक कुछ मंथली बोनांजा या ऑफर्स या रिवॉर्ड्स भी अनाउंस कर सकते हो जिसके थ्रू लोगों का मोटिवेशन बना रहे। तो मेरे साइड से ये सारी चीजें थी बताने के लिए, और भी काफी चीजें है डिस्कस करने के लिए, बट मैं चाहूंगा कि लोगों के क्वेश्चन हम लोग अटेंड करें और उसमें से ही लोगों को ज्यादातर आंसर्स मिले। बस सर, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो योगी भाई, Yes, sir. थैंक यू सो मच। एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि आज के तारीख में जो नेटवर्क मार्केटिंग, अपना नेटवर्क को यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग का एक पर्सपेक्टिव चेंज करना, क्योंकि आज ये पोस्ट पैंडेमिक हम सैलरी नहीं दे सकते, हम ऑफिस नहीं है, तो आज आपने जैसा एक ब्रीफ बताया कि आज 8 करोड़ लोग इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें से 70 लाख लोग फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और ये नेटवर्क को आप अपना प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी जो भी है बेचने के लिए यूज कर सकते हो। और हमारा इसमें यही ऑब्जेक्टिव था कि ये जो टूल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ न्यू एज मार्केटिंग टूल। आपके कंपनी में कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं और वो यूज करके आप आपका सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, बाय हैविंग एम्प्लॉय और इवन तो वो जो बेसिक फिक्स खर्चा होता है, क्योंकि आज एक भी अगर मार्केटिंग वाला हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उसका 20-25-30 हजार मंथली फिक्स खर्चा आता है। और आज ये पोस्ट पैंडेमिक जब बिजनेस हमारा डाउन हो रहा है, हम ये मुश्किल है। तो ये जो न्यू एज मार्केटिंग टूल को कैसे यूज करें, और टीवाईएम के ग्रुप ऑलमोस्ट 1300 एमएलएम कंपनी के लिए इन लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पूरा सोल्यूशन बनाया हुआ है। सो हमारा ये है कि आप आपके कंपनी में कैसे ये न्यू एज मार्केटिंग टूल को, ठीक है, इसके पहले एमएलएम का एक निगेटिव पर्सपेक्टिव सेट किया था, बट पॉइंट इज एवरी डेवलप कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मे इट बी फिर यूरोप हो, यूएसए हो, सब लोग ज्यादा से ज्यादा ये नेटवर्क मार्केटिंग टूल को यूज करके उनका सेल्स बढ़ा रहा है। तो अभी ये हमारा भी टाइम है, दिस इज अ राइट टाइम फॉर अस कि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझे और हाउ वी कैन रियली एम्बेड इन आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्योंकि हर एक, आप इसके आगे तो बहुत सारी नौकरी जा रहे, तो हर एक को अपना अपना बिजनेस चालू करना है। तो बिजनेस आप आपके डोमेन एक्सपर्टीज पे चालू कर रहे हैं, मगर हर एक का डोमेन एक्सपर्टीज सेल्स और मार्केटिंग में, और एक 95% लोगों के हर एक बिजनेस का मेनली प्रॉब्लम रहता है कि उन्होंने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी अच्छा बनाया मगर मार्केटिंग और सेल्स नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर कैसे आप, बिकॉज इवेंचुअली धंधा बेचोगे तो धंधा बढ़ेगा, तो बेचने का ही टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये बेचने का टेक्नोलॉजी इज अ इफेक्टिव टूल इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आई एम श्योर ये और योगी भाई, सिद्धार्थ भाई, इट इज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। और आप तो ऑलरेडी 12 साल से ये मार्केट में स्टडी किए हो, टेक्नोलॉजी डेवलप किए हो, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज टुडे अवेलेबल। थैंक यू सर। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे ऑडियंस है,
एक तो मीन्स अभी ये सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, so we'll open up the floor for question and answer. हेलो, मेरे ख्याल से मनोज हियर, मनोज पराड हियर. हाँ जी, बोलिए सर. हाँ जी, यस सर, नमस्कार. नमस्कार सर जी, and thank you very much for the valuable information, and it's eye opener things for I hope at least for me. Okay, so I वेलकम have a couple of questions here. Like it's good that you have come up with the platform, for the especially the people who would like to start their own things on the top of the existing job, correct? So, but one thing I am not able to correlate, how do you differentiate with this approach with the e-commerce thing? Because for example, what I mean to say, for example, we have multiple platform for the e-commerce thing like Amazon hai, Flipkart hai, right? So they are already doing that. If example, अगर मुझे कुछ purchase करना है, I can straight away log into the Amazon and Flipkart and I can order that thing, correct? So ये जो आप approach बोल रहे, so I'm not able to differentiate that. Can you please throw light on that? Sir, see, Amazon is an established company. Flipkart is an established company. Zomato is an established company. This is a perfect business model for those who don't have investment. जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना बड़ा बजट नहीं है मार्केटिंग करने का. आज Amazon ने इंडिया के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, तब जाके आज इतना मार्केट बना पाया. आज हर कंपनी के पास इतना बजट नहीं हो सकता. तो एक इंसान की ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कस्टमर आएंगे कैसे? मेरी भी खुद की वेबसाइट है purchasekaro.com या कोई और वेबसाइट है आपकी, उसके ऊपर Amazon की तरह लोग इतने जल्दी कहां से आएंगे? तो वो लाने का काम, लोगों को आपके वेबसाइट पे पहुंचाने का काम नेटवर्क मार्केटर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्ट है वो Amazon के ऊपर 1000 रुपए का बिक रहा है. तो ये प्रोडक्ट आपके साइट पे भी आप 1000 रुपए का बेच सकते हो, कोई भी सर्विसेज हो बेच रहे हो. बट आपके साइट पे लोग क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे पता चलेगा कि आप ये चीजें बेच रहे हो? भले आप 100 रुपए कम में बेच रहे हो, बट क्यों आएंगे? पता ही नहीं है लोगों को. वो काम नेटवर्क मार्केटर करेगा, आपकी वेबसाइट पे पहुंचाने का काम. और अगर एक इंसान वहां पे पहुंचता है, तो सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, Amazon सिर्फ प्रोडक्ट दे रहा है. आपकी वेबसाइट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई किया हुआ है और ये प्रोडक्ट एक कस्टमर बाय करता है, तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. क्योंकि आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि आप जो ये प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ आप इस प्रोडक्ट को रेफर करने का पावर भी उसी कस्टमर को दे रहे हो, जिससे उस कस्टमर का सेल्स करने का, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का पावर आ जाता है, और उसके थ्रू उसके ड्रीम्स कंप्लीट हो सकते हैं. आज इंडिया के अंदर लाखों लोगों ने मतलब लाखों लोग लाखों रुपया कमा रहे हर महीने का. इस इंडस्ट्री के अंदर जेगुआर, BMW, मर्सिडीज, फरारी तक गाड़ी इंडिया में लोग लेके घूम रहे इस बिजनेस से कमा के. नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को एक बिजनेस तक, बिजनेस हाउस तक या वेबसाइट तक पहुंचा के, तो ये सब सपने हम लोगों को दिखा सकते हैं कि भाई आपके ड्रीम कंप्लीट हो रहे, तो आप Amazon से मत खरीदो, आप यहाँ से खरीदो. तो एक इंसान आपके साइट से खरीदेगा, Amazon पे नहीं जाएगा सर, उसी प्रोडक्ट के लिए आपके साइट के ऊपर आएगा. सर मैं इसमें बोलूंगा कि चलो आजकल ये जो ई कॉमर्स की साइट तो बन जाती है, बट वही जैसे बताया कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी साइट है. तो पॉइंट इज, ये जो नेटवर्क है, तो पॉइंट यही है कि आप एक साइट बना के कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो ये जो रेफरल मार्केटिंग है, ये जो ऑलरेडी 8 करोड़ का नेटवर्क बन गया है, 70 लाख लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो इनको आप बिना इन्वेस्टमेंट के आप इसके साथ जोड़ सकते हो. मतलब एक ये चीज है सर कि प्रोडक्ट अगर एक इंसान बाय कर रहा है Amazon या कोई साइट से, तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, एक इनकम खड़ी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे एक इंसान आएगा. एनी नेक्स्ट क्वेश्चन सर? नेक्स्ट क्वेश्चन. या गुड मॉर्निंग, किरण पढ़ते दिस साइड. सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग नो डाउट इज अ अमेजिंग टूल एंड वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, बट ये इसके अंदर के लीगल एस्पेक्ट्स
क्या है, मतलब अगर एक किसी को नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना है तो उसके लिए लीगल प्रोविजन क्या होती है? क्योंकि कई बार ये हमें सुनाई देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क जो होते हैं उसको बस्ट किया जाता है, उसके ऊपर फिर बाद में लीगल एक्शन की जाती है। तो व्हाट इज दैट एक्चुअली, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग and how we can protect ourselves from getting any kind of illegal actions? वेरी नाइस क्वेश्चन सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, जिससे लोगों के यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा कोई है नहीं इसके लिए लीगलाइजेशन की ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। सबसे पहले माइंड से ये बात निकाल दो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल और टाइप ऑफ मार्केटिंग और टाइप ऑफ सेल्स मॉडल। आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं बोल सकते। अगर आज अमेजोन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहा है उसकी कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, या आज बजाज या हीरो होंडा या फिर सैमसंग या एलजी उसका नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनके सेल्स बढ़ाने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने उनके सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो अभी जो मार्केट में होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बस्ट किया गया, ये उसी कारण से होता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान्स चलते, मतलब प्रोडक्ट नहीं होते मार्केट में, स्कीम चलती है एक का डबल करने की, वो टाइप की सब एक का डबल करने की स्कीम होती है, वो बस्ट होती है। कभी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बस्ट नहीं हो सकती। आज ये प्रोडक्ट आप एक शॉप पे से लो या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लो तो उसमें कोई कुछ गलत चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बाय किया है। बिजनेस तो उसके साथ फ्री एंड ऑप्शनल है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इंडिया की, उसके हिसाब से है कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना चाहिए। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहे हो, सपोज आप योगी भाई, हाँ इसमें मेरी ये नॉर्मली जब कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी रहती है ना कि आप 5,000 रुपया लगाओ और इतना कमाओ, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हम तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग टूल करके यूज करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया सर। Yes, 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 very much. Thank you so much. वेलकम। एनिमल और किसी के क्वेश्चन है सर? I have a question. हेलो। हाँ जी बोलिए सर। क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो नया स्टार्ट कंपनी, नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट में करना जाने दो। अच्छा, स्पीकर छोड़ के बाकी के सब लोग अपने उसको म्यूट करके, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। एक नया वाला कंपनी शुरू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो इनिशियली स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को? नहीं अगेन आप थोड़ा सा इसको ये कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं चालू कर रहे हैं, आपकी खुद की कंपनी है। वो कंपनी में आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपके बिजनेस के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना है, सो दैट्स वेयर दिस, वो फिर आपके प्रोडक्ट और कंपनी को कौन सा मॉडल सूट होगा वो एक अलग से 1-to-1 कंसल्टिंग होगी। बट आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू नहीं कर रहे हो, आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक नेटवर्क मार्केटिंग एज अ टूल इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके आपके सेल बढ़ा सकते हो, वो फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, वो क्या पूछा ना, हमारा पास प्रोडक्ट्स है, हम एक क्यूनोवा फ्लैक्स सीड्स ऐसा वाला सीड्स है ना, वो हमारा एक हल्ची नाम कंपनी है, वो न्यूट्रिशन फूड्स का कंपनी है। हमको डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आना चाहिए। फिर क्या है ना, वो मार्जिन का उतना मार्जिन नहीं है हमारा पास, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है हमारा। सर अगर आपके प्रोडक्ट्स में मार्जिन नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन पहुंचते वो अगर कश्मीर भेजना है आपको साउथ ऑफ इंडिया से, तो वो प्रोडक्ट में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता है। हाँ, कम मार्जिन वाली प्रोडक्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है, तभी हो सकता है जब वो वॉल्यूम में हो, जब वो ट्रक भर के चीजें जा रही हो या रोज के हजारों लोग ले रहे हो, तभी वो मार्जिन में से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक मैच स्टिक का बॉक्स है, उसके ऊपर 10 पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकाल रहे हो, 1 रुपए के मैच स्टिक बॉक्स के ऊपर, तो वो रोज के लाखों मैच स्टिक बॉक्स जाएंगे,
तो जाके फायदा हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 100-200 प्रोडक्ट बेचने के लिए लो मार्जिन प्रोडक्ट या 100-200 पैकेट बेचने के लिए लो मार्जिन प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई हो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सर वो हम आपका कंपनी में अप्रोच किया है मैं, और वो सर आपका इसके प्रोडक्ट ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं 1-to-1 आपकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग अवेलेबल है, तो उनके भी और कोई टाइप के क्वेश्चंस है हाँ, तो हम कर सकते हैं। तो सर जो भी है वो आप जिनको those who want to avail or understand how this network marketing can be used effectively in their company to increase their sales, Yes. तो उनका नाम नंबर हम पे छोड़ दे। बट एनीवे आई विल रिक्वेस्ट, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। There are questions. Sir, I in the had chat one box. question. There are questions in the chat box. ओके, Sir, I had one question if I can ask. Yeah, you proceed, please. Proceed. We heard such amazing things about network marketing. Thanks for sharing all that. When we get into a network marketing model for our sales, what are the risks that we should know about and how we should mitigate them? Sir, there are no risk in this business model because you are paying just for the output. There is no risk. Like if you make a banner ad to post it, if you are making a newspaper ad or if you are making a banner ad to apply it on a roadside, you are investing money for that ad. In this business model, you are not investing any kind of money. You are paying to your distributors only when they give you the output. Because in network marketing model, everything is defined and all the calculations are based on the output of the sales. So on the sales output model, you have decided some margin, and that margin you distribute after the sales. So you get the money and then you distribute the money out of that. So there is no question of risk in this business model. Thank you, Great. sir. Hello, Mr. Yogi, I just wanted to ask you, इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंपनियां मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए आई, just like Japan Life India, they have started MLM, and after experiencing that, now people are demoralized with that particular style. And when we talk about the multi level marketing, people says नहीं बाबा ये लाइन में हमको नहीं जाना है. तो how to come out of this situation? Because they have spoiled this multi-level marketing. सर मेरा आपसे एक ही आंसर रहेगा कि स्पॉइल तो हर फील्ड को लोगों ने किया है, पॉलिटिक्स को भी लोगों ने स्पॉइल किया है। लोग जाना नहीं चाहते। क्रिकेट में भी आज 130 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर से सिर्फ 11 लोग पिच पे जा पाते मैच खेलने के लिए। और बॉलीवुड में भी बहुत गंदगी है। आपने सुना होगा कि लोग बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे पहुंचने के बाद लोग एक्टर बनते हैं, सुसाइड भी हो रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत का। तो नेगेटिविटी हर फील्ड के अंदर है, बट आपके प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, उसी वैल्यू फॉर मनी है, और उसी सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप नेटवर्क मार्केटिंग से बेच रहे हो और लोगों को लग रहा है कि मैंने लिया है, क्या नुकसान कोई नहीं है। और कोई अगर आपकी कंपनी से कमा रहा है पैसा, आप उसको दिखा सकते हो कि ये आदमी के पास कोई पैसा नहीं था और बाइक से घूमता था, कार लेके घूम रहा है। ये प्रोडक्ट के यहाँ से लेने से, शॉप चेंज करने से, मतलब आप एक ई कॉमर्स साइट पे जा रहे थे, आज आप आपके ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद रहे हो। आज आप कोई शॉप पे जा के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे या सर्विसेज ले रहे थे, वो आप दूसरे शॉप से खरीदोगे जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल वाला है। तो सेम चीजें अगर मिल रही है, साथ में पैसा मिल रहा है, साथ में स्किल्स मिल रही है सीखने के लिए, लोगों को मैनेज करना और सब कुछ, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, गलत बात हर जगह पर रहती है, तो इसमें भी पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी है और ग्रोथ हो रहा है। जो पहले हो गया वो हो गया। इंडस्ट्री नए फेज में थी, नए फेज में थी, अब पुरानी बात है वो ये सब। अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है गाइडलाइंस आने के बाद। My request to you all, my request to you all, those who really are doing business, खुद का आपका बिजनेस है, हाँ, और आपको आपका सेल्स बढ़ाना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक हाउ अगेन दिस नेटवर्क मार्केटिंग कैन बी यूटिलाइज्ड, we can have one-to-one discussion on that, and that opportunities can be explored, because आज तो आप बिना बेचे तो आपका धंधा बढ़ ही नहीं सकता है। तो जो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू नहीं कर रहे हो, सो व्हाटएवर द नेगेटिविटी जो भी है,
बट आप एक इसको एक आपका टूल टेक्नोलॉजी करके यूज कर रहे हो. इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू मार्केटिंग टेक्नोलॉजी. योगी You're जी right, गुड Subhash. आफ्टरनून, मैं प्रसाद बोल रहा हूँ. योगी जी गुड आफ्टरनून, प्रसाद बोल रहा हूँ. हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए. बोलिए. योगी जी ये ना जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स जाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स का बहुत सा सर्टिफिकेशन होता है. तो मेरा स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चन ये है कि जो TMY के जो प्रोडक्ट्स देती है उनका सर्टिफिकेशन आप करवाते हो या वो हमको कंपनी के थ्रू करवाना पड़ता है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को? सर कोई भी प्रोडक्ट्स में सर्टिफिकेशन जनरली होते नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में जो बेसिक ISIS सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेशन होते हैं. बाकी ऐसे अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट है वो हेल्थ के रिलेटेड है या बॉडी पे लगने वाले प्रोडक्ट या बॉडी के अंदर जाने वाले प्रोडक्ट है, तो कोई भी कंट्री हो या कोई भी नॉर्मल बिजनेस हो या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट का अप्रूवल फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से लेना जरूरी है. आज कोई भी मेडिसिन शॉप के पास लाइसेंस होता है तो उसी तरीके से वो प्रोडक्ट बनाने वाले को लाइसेंस लेने का जरूरत है. नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है. प्रोडक्ट के लाइसेंस किस इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे आप मतलब कोई फूड की आइटम है तो FSSAI का लाइसेंस आता है. ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, हेल्थ की प्रोडक्ट है तो फार्मा लाइसेंस या फिर फूड एंड ड्रग का लाइसेंस आता है. या ऐसे मतलब जो इंसान के मतलब यूज करने के बाद या यूज करने से रिस्क उस पे आता है इंसान के लाइफ के ऊपर, तो उसी प्रोडक्ट में लाइसेंस की जरूरत होता है. बाकी वैसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए अलग से लाइसेंस लेने का, प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूरत नहीं है. बट योगी भाई, जस्ट टू आंसर देयर क्वेश्चन, अगर किसी को ऐसे टाइप का कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जैसे सक्सेस कंसल्टेंसी, वी आर अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड वी Yes, हैव sir. क्रिएटेड अ इकोसिस्टम फॉर ऑल दिस MSME बिजनेसमैन. तो आपको किसी को एनी काइंड ऑफ सपोर्ट में से कोई लाइसेंस हो, ये हो, तो देयर यस वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस एंड we can support in that area to any businessman who need any kind of support system. Yes, थैंक sir. यू सुभाष जी. एग्जैक्टली मैं इसी लाइन पे सोच रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, उनके पास एक ISO सर्टिफिकेशन होता है या फिर उनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता है. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी गिवन बाय यू, दैट्स व्हाट आप कहना Yes, चाहते हो, yes. राइट? Yes, we can support you for all these things. हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट्स है, ऐसे कुछ लॉयर्स है जो आपको इस चीज के लिए सपोर्ट कर सकते हैं. और सक्सेस कंसल्टेंसी और TYM के हम लोग साथ में है काफी टाइम से, तो हम लोग इस जो आपकी जो भी प्रॉब्लम थे उसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे आपके जेन्युइन बिजनेस मॉडल को बढ़ाने के लिए. थैंक यू वेरी मच योगी जी. लास्ट वन क्वेश्चन, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान्स वर्किंग होता है ना, तो प्लान तो हमारे समझ में आता है, लेकिन ये प्लान को करेक्टली सॉफ्टवेयर में ढाल के ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. तो उस बारे में हाउ यू कैन सपोर्ट अस? सर कोई भी चीज नई होती है तो आपको डिफिकल्ट लगती है. मतलब आज आपको हम बोलेंगे कि भाई आप हेलीकॉप्टर चला लो तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाएगी. We have developed more than 1,200 network marketing softwares in all with all the kind of compensation plans. So मैंने जो सिद्धार्थ जी यहाँ पे थे स्क्रीन के ऊपर, वो टेक्निकल डायरेक्टर है TYM के, उन्होंने उनकी लीडरशिप के अंदर 1200 से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप किए सभी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन कंपेंसेशन प्लान के लिए. तो ये आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा. हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन है हमारे पास, और हम लोग 48 आवर्स के अंदर आपकी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना. ऐसा 1 महीना 2 महीना 1 साल इसके ऊपर सोचना कि भाई क्या करूं कैसे होगा. हमारे क्लाइंट अगर मंडे को हमको कंफर्म करते हैं, हम ट्यूसडे इवनिंग को उनकी वेबसाइट लाइव कर देते हैं. तो हमारे पास इस चीज के रेडीमेड सॉल्यूशन से हम आपकी कंपनी को 48 आवर्स में नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसका थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए आप. So I That's have really one wonderful. question. Thank you very much. I think thank you Subhash and Unmesh for arranging this lovely session. I see when people ask questions, there's a great difference between multi-level marketing and network marketing. And this focus of this presentation seems more on
network marketing, because multi-level marketing is completely where you, what just now Mr. Prasad asked, how will the money get distributed, where you have different models and the money gets distributed. But network is something you kind of create a network of your own, and through that network you are basically going to do business. Now this could be typically a network created through social media, something like that. But any which ways, there has to be a legal entity for you to do this business. Without a legal entity backing up, because you're going to receive money and you're going to do that commercial transaction, there has to be a legal company through which this money has to be paid by the people. It cannot be taken in the savings account, if I understand Yogi correctly, right? Sir, what you are telling about multi-level marketing and network marketing, in my terms, network marketing and multi-level marketing or direct selling or chain marketing, everything is same. When you are talking about the network, so you are talking about the individual network. Like you have a network on Facebook or Twitter or Instagram. You have individual network, not network through network. So this is multi-level marketing, which has multi-level network, and everyone is interlinked and connected to each other at different levels. And the compensation, according to the compensation plan, the money is divided according to the levels. So it is called as multi-level marketing. But ultimately, if I can say, network marketing, direct selling, or multi-level marketing, everything is same when we talk in the perspective of network marketing. So I think you got the answer. It's not different. There are three I questions. slightly differ with you, but anyways, I think. Okay. Yeah. Thank no you. problem. Thank you, Rajesh. Thanks. Thank you, there are- Subhash. Thank you. There are you, three Umesh. questions on the chat box. I will read out the first one. What is the suitable marketing model for units enterprises producing goods of intermediate consumption or capital goods with special reference to mechanical industry? किरणजीत कौर ने एक सवाल पूछा है, and maybe this is related to B2B marketing. Suitable marketing model for units and enterprising producing goods of intermediate consumption. सर B2B में ये चीजें अप्लाई करनी डिफिकल्ट है. ज्यादातर B2C बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर जो बिजनेस मॉडल है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग करना काफी मतलब इजी रहता है. B2B में भी अप्लाई हो सकता है, बट उसके पूरे एल्गोरिथम्स और उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से हम लोग 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं. जनरली ऐसा होता नहीं है B2B में, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग हुआ नहीं है वर्ल्ड में, और हो भी रहा है तो कुछ उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है, स्पेशली उसके ऊपर सोच के या एनालिसिस उसका करके उसका सॉल्यूशन जरूर निकाला जा सकता है. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, वो जरूर से हो सकता है. There is one more question by Akshay Khobragade. How to work this plan in service industry? कोई भी इंडस्ट्री हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, यू हैव ए सेट ऑफ मार्जिन कि आपके पास 100 रुपए के प्रोडक्ट में 30 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सर्विस मॉडल के लिए अलग नेटवर्क मार्केटिंग है, प्रोडक्ट मॉडल के लिए अलग नेटवर्क मार्केटिंग है. If you have 30 rupees to distribute or 50 rupees to distribute out of 100, so you can distribute it in any industry. Maybe it may be service industry or product industry. So this is not the problem in this network marketing model. Third question is from Nilesh. Okay, please. Third question is from Nilesh B Positive on YouTube. We also have around 20 people watching on YouTube today, along with the Zoom presence. Nilesh Positive asks, what are the certifications required to convert business into network marketing model? Sir, there are no certificates required. Generally, we have an enterprise registration, GST registration. That's only required for network marketing, to apply network marketing business in your company's existing business model.
There is no separate certificate or approval required from the government side to open this business or to add this business model into your existing business model. No, I will put it this way. Yeah, this is a Hello. part of your marketing strategy. This is a part of your sales and marketing strategy as to how you want to develop a marketing strategy. So in while designing a sales and marketing strategy, we can help you how you can incorporate the power of network marketing and multiply your sales. I hope I have put it correctly, sir. There is one more question from Amol Gaikwad. Sir, one more question from. Yeah, wait a minute, please. Okay. This is the last question from the chat. What is the safety about commercial transactions done through your site? Sir, I didn't understand the question. Safety of commercial transaction from your side. Yeah. So maybe you said that you can develop the website for your client within a day. So maybe that is the question, because it was asked that time only. See, if you are asking about the commercial surety, what I can say is that we charge some amount or 50% amount to start your work, and we take the remaining money from you after we complete your project. No, I think question is not that. I think question is not that. I will answer rightly. सर, इसमें हम आपके बैंक अकाउंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका पूरा पैसे आपके अकाउंट में जाता है. सर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. मतलब कैसा बैंक अकाउंट में लिंक हुआ, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन लग रहा है सर. कोई है अगर जिसने पूछा है वो अगर है तो. Yeah, Amol Gaikwad, can you elaborate on this question? Yes. Yeah, please, Amol. So what I want to say, hello, can you hear me, sir? Yes, sir. Yes, I can hear you. Actually, what I want to say, my question is that when I am purchasing from Amazon, any product. Okay. I have got to one trust that, chalo, when I'm using my debit card or credit card, there is a safety. चलो मेरा हैंग तो नहीं, मतलब कुछ कोई चुरा तो नहीं रहेगा कोई मेरी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन. But if when I am using your recommended site to purchase particular product from that site, what is the assurance or what is the safety about that any my personal details won't get steal? सर, ये जो आपका क्वेश्चन है कि मतलब जो आप कोई वेबसाइट के ऊपर बाय कर रहे हो उसकी बात है, तो कोई भी वेबसाइट में जो पेमेंट होता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है. अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या अमेज़न है या कोई भी, आप अगर कोई भी पेमेंट गेटवे पे वेबसाइट पे पे करो तो पेमेंट गेटवे आता है जहां पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट होता है. आजकल आप देखते होंगे रेजर पे नाम की कंपनी है, बिल डेस्क नाम की कंपनी है, पेयू मनी नाम की कंपनी जो बीच में आ जाते हैं अमेज़न पे के आप पे करते हो तो वो लोग पैसा लेते हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज का उनके साथ एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ कि भाई ये जो हम पैसे ले रहे हैं तो उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है और सब कुछ डिसाइडेड होता है. इसलिए ऐसा कोई स्कैम नहीं हो सकता है. और जो इंसान आपको रेकमेंड कर रहा है वो आपका रिलेटिव है या फिर आपका फ्रेंड है या फिर कोई आपका जानकार है, तो वो आपको गलत नहीं बोल सकता है. और अगर बोलता भी है तो उनके थ्रू उन्होंने भी बाय किया हुआ है इसलिए आपको रेकमेंड कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है ट्रस्ट का बात. और अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उसके कंप्लेन करने के मेथड्स है कंज्यूमर मिनिस्ट्री में या कंज्यूमर अफेयर्स में या फिर जो भी आपका पेमेंट गेटवे है बैंक में कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ है. फ्रॉड तो पेटीएम पे आज भी हो रहा है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो भी हो रहा है. तो उसके रिजॉल्व करने के कुछ मेथड है मार्केट में, उससे कर सकते हैं. Now I would say payment gateway it is a normally approved by RBI. तो जब पेमेंट गेटवे आपके बैंक से इनका ऑलरेडी एक एसोसिएशन होता है. So normally when you are making money through payment gateway, it is linked to your bank and bank takes care. और because you know कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन ये पूरा RBI के अप्रूवल और ये सब मैकेनिज्म के हिसाब से होता है. So normally it is very rarely कि ऐसा कुछ होता है. But anyway, if it happens that there is a mechanism to solve those problem as well. But hardly rarely ऐसा कुछ हो रहा है आजकल. Sir, one my question. I am Jitendra. I just want to know how much level we pay to multi-level marketing people. There is some limit.
मतलब मुझे ये कहना है कि जब हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोगों को ले रहे हैं तो कोई लिमिट तो रहेगा ना कि इतने लेवल तक लोग जाएंगे तब तक मैं उनको पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मार्जिन एक डिसाइडेड मार्जिन है। वो मार्जिन को मैं जितने लोग नीचे नीचे जाएंगे, जितने लोग बढ़ेंगे, तो उनको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये पूरे सेशन में काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सबको रहता है जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग को समझता है। ये जो कंपेंसेशन प्लान डिजाइन होता है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेंसेशन प्लान होता है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आपकी कंपनी में 1 करोड़ लोग भी आ जाए और 1 करोड़ लोग आने के बाद अगर आपको पेन बेचनी है और 100 रुपए की पेन पे आप 50 रुपए बांटना चाहते हो तो 1 करोड़ लोगों के बीच में नहीं बढ़ता है। वो परफॉर्मिंग लोग होते हैं, लेवल्स होते हैं और उसके कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं कि आपको इतना सेल्स खुद से करना है और आपको एक साइड पे इतना है, दूसरे साइड पे इतना मेंटेन करना है, थर्ड साइड पे इतना मेंटेन, ऐसे कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं। नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप 50 रुपीज को 1 करोड़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो वो पूरे टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे आता है कंपनी के और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पूरी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अनलिमिटेड लेवल्स, अनलिमिटेड डेप्थ, मतलब एकदम बॉटम लेवल पे 5 करोड़ लोग भी आ गए, 10 लाख लोग भी आ गए तो भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है और हो रहा है। हमने कुछ ऐसे कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जिन कंपनीज में 7-8 लाख लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और वहां पर हम लोग इस बिजनेस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इसमें मैजिक नहीं है, ये पूरा प्रूवन बिजनेस मॉडल है, हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि इतने लेवल पे जाने के बाद कुछ गलत मैसेज चला जाए तो कंपनी का गुडविल खराब हो जाए। नहीं सर, इसमें कैसा होता है योगी भाई, I'll answer this way सर। इसलिए नहीं सर, देखो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, उसके हिसाब से आपसे बात करने के बाद वो मॉडल डिफाइन किया जाता है। हम एक पर्टिकुलर मॉडल आप पे थोप नहीं रहे। अगर आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके बिजनेस में आपके प्रोडक्ट सेल्स मल्टीप्लाई करने के लिए बेचना है तो वील हैव अ डिस्कशन 1-on-1। और ये इसका बिकॉज आपके इंडस्ट्री को आपका नॉलेज ज्यादा रहता है, यू नो योर इंडस्ट्री बेटर, बट हम इसको सॉरी, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस। आपके साथ बात करने के बाद उसके बाद ये मॉडल डिजाइन किया जाता है। सो देयर इज नो फिक्स मॉडल एज ऑफ नाउ। सर इसके अंदर और एक चीज है कि अगर 100 रुपए में से आप 39.32 रुपीज बांटना चाहते हो ना, 39.32 रुपीज बटेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि 39.33 रुपीज एक प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। इतना सेफ मॉडल है, मैं तो ऐसा गारंटी दे सकता हूँ आपको। नहीं ऐसे अभी क्या है, इसको आज तक ना नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को इंडिया में गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अच्छी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करके इसकी पावर को कम किया जाए। नाउ वी आर गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, especially why this seminar MSME crisis, because every MSME is facing problem because they are not able to sell their product. Even if they want to sell, if they want to invest money in appointing people, they don't have money. So we are putting the different perspective of network marketing, means we are putting power of network marketing, and that power can be again designed specific to your products and industry. So that is again one-to-one discussion. तो ये अगेन मैं आपका सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा है कि यू आर हायरिंग अस एज आवर कंपनी टू डिजाइन योर सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड उसमें फिर नेटवर्क मार्केटिंग यूज करके हम कैसे आपका सेल्स बढ़ा सकते हैं। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेमिनार इज ऑल अबाउट दैट। योगी जी, अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें मुझे मतलब आई कुड सी दैट देयर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज एंड देयर लॉट ऑफ लेवल्स टू अंडरस्टैंड फॉर एनी एंटरप्रेन्योर अगर वो शुरू करना चाहता है। तो इसमें कोई क्रैश कोर्स जैसा है क्या आपके पास, जो देख के हम समझ पाए कि ये पूरा मॉडल कैसे काम करता है और कौन से लेवल पे हमको इसमें काम करना पड़ेगा, विच आर द थिंग्स, क्योंकि इसमें कमर्शियल थिंग्स है, देन देयर इज अगेन मार्केटिंग आ गया उसमें। सो इसमें कोई आपके पास ऐसा कोई क्रैश कोर्स जैसा है जो हम लोग देख के समझ पाए इस मॉडल को अच्छी तरह से? हमारे पास इसके लिए कुछ हमने PDF है और YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस है इसके ऊपर। तो आप
जिनके भी थ्रू इस मीटिंग में आए आप उनको कनेक्ट करना, और हम लोग आपको वो मटेरियल जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो पूरा हम आपके तक पहुंचा देंगे सर। जी मैं तो आपके थ्रू ही आया हूँ, तो आप ही मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा, हम आपको भेज देंगे सर। आई थिंक 1.5 घंटा हो गया है और संडे है, तो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन रहेगा इफ एनीबॉडी हैज लेफ्ट आउट। आपको अच्छा लग रहा है सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है, तो 1.5 घंटा हो गया पता नहीं चला। नहीं, टॉपिक देखो, टॉपिक इनफैक्ट दिस इज अ ग्रेट टॉपिक फॉर दिस कंट्री, स्पेशली द कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। 25 अपना 250 मिलियन 25 करोड़ एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, उसमें से 98 पॉइंट, तो और हर एक एवरीबडी इज सफरिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। सम पीपल आर एक्सेलेंट इन देयर प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सो दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू कम इन। तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और हम इसीलिए मीन नोबडी हैज डेवर, वी एज अ बिजनेस कंसल्टेंट और नो बिजनेस कंसल्टेंट हैज एवर डेयर टू इवन टॉक ऑन मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बड़ा न्यूज है कि हिमाचल में शूलिनी यूनिवर्सिटी करके है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी ग्रेजुएशन कोर्स लॉन्च किया 3 साल का। तो ग्रेट, चलो एक्सेलेंट। नहीं देखो, अभी एवरीबडी हैज टू अडॉप्ट द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, but we are coming out, first you can say we are presenting or marketing this in a very positive way. So देखो sir, I would request, we know in association with TYM के group and success, हम एक MSME का ecosystem create कर रहे हैं, and when we say ecosystem, we provide end-to-end support. When I say end-to-end, we have a parallel company, हमारे success का दूसरा एक कंपनी है तत्काल लीगल सर्विसेज। सो इफ यू नीड इवन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ कंपनी विद अस एंड वी हैव अ एक्सपीरियंस टीम ऑफ कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल्स विद अस। और हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे विजन में हमने, आवर विजन इज टू प्रमोट नेशन बिल्डिंग थ्रू टीम, कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव सक्सेस। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, व्हाट इज कोलैबोरेशन? अगेन यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज के तारीख में इसके आगे जो 3-4 साल बोल तक और ये इकोनॉमी हमारी डाउन रहने वाली है, तो इसमें हमको एक नया पॉजिटिविटी के साथ जाना जरूरी है। When there is so much of negativity in the market, we have to present positivity and we have to go give hope to the people. तो हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है कि यस, यू कनेक्ट टू अस, और आपके थ्रू भी जो भी लोग रहेंगे जिनको लगता है कि यार नहीं, दे आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, उनका बिजनेस बढ़ाना है। और ये एक्चुअली पोस्ट पैंडेमिक जॉब में कोई सर्टेनिटी नहीं है, जॉब में गारंटी नहीं है, क्योंकि जिनके जॉब थे वो उनका बहुत लोगों का सैलरी कम हो गया है और बहुत लोगों ने 1-2 करोड़ का EMI लिया हुआ है, तो EMI कैसे? सो अभी द मोस्ट अनसर्टन मार्केट इज अ जॉब मार्केट। तो अगर इतना है तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम आउट टू बी अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर। हम उसको जरा सोशल एंटरप्रेन्योर का भी हमारा मॉडल है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम लगेगा उसमें, यस, ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम वी आर प्रोवाइडिंग, बट exploring the power of network marketing was the agenda of today's second series or second dialogue or second lecture webinar on MSME crisis dialogue. So yes, और किसी को कुछ रहेगा तो I think within 2-3 minutes. really wonderful session, बहुत ही अच्छा सेशन था। एक सिंपल लास्ट क्वेश्चन जो आप 1-2 वर्ड्स में आंसर कर सकते हो। सर जी, मान लीजिए कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खड़ी करनी है, which is a product based company, okay, जहाँ पे मान लीजिए कि I want to get the product। आपको क्या लगता है कि initially what is the amount that I should starting be with? कितने अमाउंट का प्रोविजन मेरे पास होना चाहिए so that I can run the company smoothly without any financial hassles? सर आई थिंक वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आप कौन से प्रोडक्ट के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग करना चाह रहे हो, और उसके MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप कोई कंपनी से सर्विसेज और प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आई थिंक जो अभी इंडिया के अंदर चल रहा है उसके हिसाब से 10 से 20 लाख रुपए के अंदर एक आपका कंपनी का सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट का सेटअप हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। अच्छा, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? उन्मेष, कोई क्वेश्चन है अभी चैट पे?
There is no question on chat now, and maybe we can also tell here about our next lecture on by Ripple Doshi. I think we'll announce when we have a subject and all. तो हम automatically already अपना एक promotion के through. So we will definitely have a next lecture coming on this MSME crisis dialogue by one of our professional associates and consultant on board. He is actually known as MSME Guru. तो उसका means जो हमारा तीसरा series रहेगा, तीसरा lecture रहेगा on MSME crisis dialogue. Probably we'll have it next Sunday. बट वो 2-4 दिन में आपके पास इनविटेशन भी आ जाएगा. सो आई वुड से विद दिस आई पर्सनली वांट टू थैंक मिस्टर योगी ठक्कर, सिद्धार्थ जोशी एंड all the team member or all the people who have actually come on Sunday morning to attend this series. So thank you all. Or plus we are there, means when he says Thank you success Subhash consultancy. sir, thank you Unmesh sir, thank you all the participants. आप सब लोग संडे आए और इतना अच्छा सीखने के लिए आपने आपका क्या बोलते थर्स्ट है आपके अंदर, और इसी जो थर्स्ट है उसको बनाए रखना आप लोग, और हम लोग साथ योगी में भाई, आगे बढ़ेंगे. you are the role model for this country because आप at the age of 30 आपके पास 1200 से ज्यादा कस्टमर है और ओवरऑल आपने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया हुआ है, 120 प्लस का स्टाफ स्ट्रेंथ है. So we are objective is to also let the people, let this country know कि यार 30 साल का एक यंग डायनामिक बंदा है जो इस इंडिया को एक नया मॉडल प्रेजेंट कर रहा है. So yes, that's what our MSME ecosystem is all about. And yes, मैं आपके और आपके दोस्त को नियर एंड डियर जो भी बिजनेस में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्रॉब्लम है, you come to Success Consultancy, you come to TYMK, and success is all about creating your success story. Success Consultancy is all about creating your success story. और उनके लिए हमारे पास बड़ी टीम है और हमारा फोकस प्योरली विजन है to create, to work for nation building. So again, I think with this, I thank you all who really came, and without your presence, we would have not been able to make this today's seminar a wonderful seminar. And personal thanks to Yogi and Siddharth. So thank you so much and have a good day, and we'll meet on next Sunday. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you, Yogi ji. Thank you all. Thank you, Saurabh ji. Welcome.